والے ہیں، اس دھرتی کے رکھوانے ہیں، تم کانوں کے تالے ہیں، سمندر والے ہیں، سمندر والے ہیں۔ ہماری طاقت ہے، ایمان ہماری حرمت ہے، سمندر کے بازی حکمت ہماری حرمت ہے، ایسی ہمت والے ہیں، سمندر والے ہیں، سمندر والے ہیں۔ ہماری شان ہے، تاریخ تو ہماری جان ہے، یہ اپنا رہبر ہے، یہ قدر ہماری آن ہے، ہم سورج ہے اجلالے ہیں، سمندر والے ہیں، سمندر والے ہیں۔ دشمن کے لیے جمشید ہے، ہماری تو عالمگیر ہے، باطل بھی بہل جانے ہمارے حق تقدیر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایمان کے ہم والے ہیں، سمندر والے ہیں، سمندر والے ہیں۔ پاک بحریہ کے ستمبر 1965 کی جنگ میں انجام دیے گئے ان کارناموں کی سچی کہانی ہے جس میں اس نے دوران جنگ قوم اور مسلح افواج پاکستان کو حساس، اہم اور ضروریات زندگی کی اشیاء کی فراہمی اور سمندری تجارتی حدود کو کھلا رکھنے میں انجام دی۔ ساتھ ہی تباہ کن بحری جہازوں نے دوارکا کو تباہ کر کے نہ صرف اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، جرأت اور بہادری کا ثبوت دیا بلکہ بحیر عرب پر اپنا مکمل تسلط قائم رکھا، جس کی بنا پر دشمن کی بحریہ اپنی بندرگاہوں میں محصور ہو کر رہ گئی اور سمندروں میں نکلنے کی جرأت نہ کر سکی۔ پاکستان بحریہ کے قوم کے لیے کیے گئے یہ تمام کارنامے اس کے افسروں، سیلروں اور تباہ کن جہازوں کی مضبوط پیشہ ورانہ حکمت عملی کے مرہون منت تھے۔ ایسے تمام مشنوں کی تکمیل اور کامیابی کا انحصار صرف اور صرف قابل اعتماد تباہ کن بحری جہازوں کی دستیابی ہی سے ممکن ہے۔
یہ گھوڑے ہیں. یہ مراکش کا وہ ساحل ہے جہاں نامور اسلامی سالار فاتح شمالی افریقہ عقبہ بن نافع نے بحر اوقیانوس میں اپنا گھوڑا ڈالتے ہوئے تاریخی جملے کہے تھے کہ یا رب، اگر یہ سمندر میرے راستے میں حائل نہ ہو جاتا تو میں تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا. یہ خلافت عثمانیہ کا مرکز ترکی ہے، جہاں دنیا کے عظیم ترین امیر البحر خیر الدین باربروسا نے 50 برس تک سمندروں پر حکمرانی کی، اتحادیوں کے حلیفوں کو شکست دی اور ایسا سکہ جمایا کہ بحریہ کے تمام نقاد بیک وقت پکار اٹھے کہ باربروسا ناقابل شکست ہے. And let me remind you one thing and keep this in mind کہ یہ وہ روشن مثالیں ہیں جن کی روشنی ہمارے جہاد کے جذبوں کو ہمیشہ منور رکھے گی. Any questions? ایکسکیوز می سر. سر تاریخی حوالے سے خلیج کچھ کے بارے میں کچھ بتائیں. Good question. خلیج کچھ کراچی کے جنوب میں دریائے سندھ کے دہانے پر پھیلنے والے ڈیلٹا اور اس کے اطراف کیچڑ، دلدل، ویران اور بنجر علاقہ ہے جو 200 میل شمال میں بھارت کی سندھ پھیلتا چلا گیا ہے. اس غیر آباد علاقے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آج تک بین الاقوامی سرحدوں کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا. ایکسکیوز می سر. یس. انتظامی طور پر اس علاقے کی کیا پوزیشن ہے؟ انتظامی طور پر تو ریاست کاٹھیاواڑ کا شمالی علاقہ مغربی پاکستان کے انڈر رہا ہے، لیکن جب سے ان اطلاعات کی تصدیق ہونے لگی ہے کہ اس علاقے میں تیل کے ذخائر موجود ہیں، تب سے بھارت نے خلیج کچھ میں اپنے قبضے کی کوششیں تیز کی اور پاکستان کی ایک چوکی اور ایک گاؤں کو رونق کر ہمیں للکارا ہے. لیکن بھارت کو شاید یہ یاد نہیں رہا کہ تاریخ کے حوالے سے خلیج کچھ کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں سن 1026 عیسوی میں سومناتھ کا عظیم الشان مندر ہوا کرتا تھا، جسے ہندو قوم ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، لیکن محمود غزنوی نے اسے فتح کرتے ہوئے اس کے اندر نصب سب سے بڑے بت کو اپنے گرد سے گراتے وقت یہ تاریخ ساز جملہ ادا کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت محمود کو ایک بت شکن کے نام سے یاد رکھے. لیٹ می ریمائنڈ یو ون تھنگ، اگر وقت پڑا تو پاکستان نیوی بھی غزنوی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بت شکنی کی اس تاریخ کو پھر سے دہرائیں گے. کیڈٹس، the last point of my lecture is that today is my last day in the academy. Tomorrow I will be joining PNS Khyber. Come in. سر، لیفٹنٹ فاروق نے رپورٹ کر دی ہے کہ آپ ملنا پسند کریں گے. گڈ. سینڈمین آیا سر. لیفٹنٹ فاروق صاحب. Quite young and smart man. Are you married? No sir. کوئی پروگرام؟ ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے سر. کیا عمر ہے تمہاری؟ 26 سال سے. دیکھو لیفٹیننٹ، ابھی ہم لوگوں نے ڈٹ ختم کی ہے، لہٰذا اس وقت جہاز کا ہر ڈپارٹمنٹ ہائی اسٹیٹ آف ٹریننگ میں ہے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم گنی ڈپارٹمنٹ میں اس ہائی اسٹیٹ آف ٹریننگ کو مینٹین کرو. یو انڈرسٹینڈ؟ یس سر. اوکے. Would like to have a cup of tea? No sir, thank you.
All right then. You know Gora. थैंक यू सर. आपके पास एक बहुत अच्छा चीफ पेटी अफसर है, करम अली. सर, वेरी एफिशिएंट एंड ब्यूटीफुल. सर, आपसे पहले लेफ्टिनेंट शफी गैलरी अफसर की ड्यूटी कर रहा था. आप उसे ब्रीफिंग ले लें. ओके सर. चीफ पेटी ऑफिसर करम अली सर. कैसे हो करम अली? मौला का करम है सर. बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी करम अली. ये भी मौला का करम है सर. I see it. बलवंत सिंह, पाकिस्तान नेवी गल्फ ऑफ कच्छ में दाखिल हो चुकी है. But there is nothing to worry about. ये एक छोटा सा फ्लोटिला है. साइज, स्ट्रेंथ और नंबर्स में ये एक बहुत छोटी नेवी है. नो कंपैरिजन. बलवंत सिंह, यस सर. क्या साइज होगा पाकिस्तान नेवी का, बताओ. और सर जी एक क्रूजर है तो कोई 8 साल पुराने दिखता है. तो ना कर फ्रिगेट. सर जी असी बहुत वड्डे सत श्री अकाल जो बोले सुने हाल. गुड, वेरी गुड. हमारे पास 19 डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट, 2 क्रूजर्स और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रम जिस पे हम इस वक्त खड़े हैं. इट मीन सर 18 एयरक्राफ्ट. और इन्ने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं ने. तुम हुक्म करो तो मैं सारी पाकिस्तान एयरफोर्स के नेवी नू कल्ला फड़ लिया. हाँ, जिस तरह दिल्ली चुटिया नू फाड़ दिया. लेकिन सर उन्हें एक एडवांटेज है जो हमें नहीं है. एडवांटेज? उनके पास एक सबमरीन है जिसका नाम गाजी है. इस वक्त ये सबमरीन कहाँ होगी? सर वैसे हमारी इंटेलिजेंस और हमारा एयर सर्विलेंस 3 दिन से उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो रही है. Angle on the bow, port 30, range 12,000 yards. It's an aircraft carrier. It is, sir. Are you sure? Yes, sir. That's your 50, sir. You will put me on. From that 40 degrees, sir. Up. You're on, sir. Heading now. Bearing 060. Don't stop. Yes, it's Vikram. तो ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पिछले 8 घंटे से ट्रैक कर रहे हैं. सर, दिस वॉज द मोमेंट वी वर वेटिंग फॉर. टारगेट इस सब रेंज में है. सर, ये चांस हमें मिस ना करने दें. हम इस विक्रम के पक्षे उड़ा देंगे. टारगेट हमारी रेंज में है. सर, काम डाउन नंबर 1. सर, मुझे मालूम है कि इस वक्त आप लोगों की क्या फीलिंग्स है. मैं ये भी जानता हूं कि इनके कैरियर को उड़ा के हम इनकी नेवी को 0 पर ला सकते हैं. अच्छी आदत है सर, लेकिन नहीं, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता.
याद रखिए, जब्त और बर्दाश्त भी हमारे प्रोफेशन का एक हिस्सा है। जंग अभी छिड़ी नहीं है, लिहाजा हम पहले फायर नहीं कर सकते। और हैसियत मुसलमान के हम उस वक्त तक हमला नहीं करते जब तक दुश्मन हमारे ऊपर हमला ना कर दे। नंबर 1, उसे ट्रैक करो। हमारी नेवी का फ्लोटिला भी यहाँ मौजूद है। हाँ, अगर उसने हमारी फ्लोटिला पर अटैक किया तो हम उसके पुर्जे उड़ा देंगे। आज तो सुबह से मैंने कोई मर्चेंट शिप भी पोर्ट ऑफ टांडा की तरफ जाते हुए नहीं देखा। सर, हम पिछले 7 दिनों से यहाँ पर हैं। इस दौरान हमने सिर्फ 2 मर्चेंट शिप्स को इंस्पेक्ट किया था। nautical mile. Steering course 050, assumed to be merchant ship. Heading for Port of Kandla. Over. Contact is printing on a starboard bow. It is 14 miles. Request permission to sound action station, sir. Tell the captain for me when visible. Aye, aye, sir. It is on bearing 225. Glad that is ready to make challenge. मैंने मुझे तो मुझे मर्चेंट शिप लग रहा है। तो दोस्तों को कहा बोर्डिंग पार्टी तैयार करें, हम उस शिप को इंस्पेक्ट करेंगे। आए आए सर। दाता है पानी तक जा रहा है। कैबिन से स्टॉप, रिपोर्टिंग फॉर इंस्पेक्शन। राजस्थान। कर लो जो करना है। उन्होंने मर्चेंट शिप में इन्वेस्टिगेशन नहीं रोक के अपनी समंदर से सुप्रीमेसी कायम कर ली। ऐसी इस विक्रांत ਨੂੰ ऐसे लुकाई बैठे हो यार। सर, विक्रांत इस समय आगे नहीं जा सकता, जरा बुद्धि से काम ले। हो सोड़े हो ते सफेद हाथी ने किस वास्ते छुपा रखा जे? अंडे देन नहीं तो मैं कहना ऐसे है ना कनक न जाओ न तरकारी न सब्जी न मुटियारा ने और मुटियारा ना जिक्र करके तो दिल कट लिया जे। और फिर क्यों बैठे हो ऐसी? चलिए उठे चलिए जिससे कम से कम मुटियारा तो हो। और रब तेन सुखी रखे। पाकिस्तानी फोर्सेस ने और साड़ी फौजा ने पीछे धक्का देके वो गांव से भी कब्जा कर लिया। ये विविध भारती है। आज प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा कि रन ऑफ कच्छ की समस्या को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को समर्पित कर दिया गया है और सेनाओं को भूतपूर्व सीमाओं पर लौटने का आदेश दिया है। Officers, I am not very happy with the news. Our forces have withdrawn and the High Command has ordered a ceasefire. पाकिस्तान नेवी अपना काम करके चली गई है और अब हमारी भी वापसी है। एनी प्रॉब्लम सर? केस आर्बिट्रेशन में चला गया है।
आर्बिट्रेशन। जी, एज यू नो, रन ऑफ कच्छ पेट्रोल ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने जहाजों को हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस में रखना है। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, दुश्मन बहुत मक्कार और चालाक है, अचानक किसी वक्त भी हमला कर सकता है, इसलिए शिप हस्बेंड्री का ख्याल रखना है। और यो आप अपनी मशीनरी स्टेट से मुतालिक तमाम रिपेयर्स और मेंटेनेंस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके? ऐसा लगता है जैसे अभी तक अमेरिका में बैठे थे। अजी नहीं जनाब, मैं आ गया हूँ और आपके सामने बैठा। यार कभी कभी आ जाया करो, शतरंज की बाजी लगाए हुए बहुत दिन हो गए। आपके साथ हमारी शतरंज की बाजी तो अब रिटायरमेंट के बाद ही होगी, क्योंकि आजकल हमारी जो शतरंज है उसकी बिसात बहुत लंबी बिछी हुई है सरहद के पार दुश्मन के साथ। हाँ, ये बात तो है, वाकई दुश्मन बहुत चालाक है। अंकल, आप एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, एक अच्छे सेलर, एक अच्छे ऑफिसर भी हैं। और हमारी तमाम फोर्सेस और नेवी इतनी एफिशिएंट है कि वक्त आने पर दुश्मन को इस बिसात पे मात दे सकती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ की लड़कियों में माशाल्लाह जरूरतमंदाना जज्बा पाया जाता है। अंकल, मैं तो कहती हूँ कि आप मुझे भी नेवी में भर्ती कर लें, मुझे नेवी यूनिफॉर्म पहनने का बहुत शौक है। हाँ हाँ, वेल सेड, वेल सेड। इसमें इतने हंसने की क्या बात है मेरे दोस्त? आखिरकार हिरम बेटी चाहे तो नेवी ज्वाइन कर सकती है, और वैसे इसने अगर मेडिकल क्लियर कर लिया तो ये कमीशन भी ले सकती है। एनीवे, आजकल और क्या हो रहा है बेटे? बस आजकल रिजल्ट का इंतजार है। इंतजार, रिजल्ट का इंतजार, ये क्या बात है बेटा? भाई पास होने की जो खुशी तुम्हें होगी वो तो होगी ही रिजल्ट आने के बाद, लेकिन रिजल्ट के इंतजार में जो एक लुत्फ की कैफियत होती है वो ठीक तो होती है ना यार। तुम कुछ कह गए। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये फर्रुख है, आपकी नेवी में लेफ्टिनेंट है? अरे अपने कर्नल वसीमुद्दीन का बेटा है। ओह, आई सी। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। रिलैक्स योरसेल्फ बॉय, यू आर नॉट ऑन ड्यूटी हियर। थैंक यू सर। कहाँ हो तुम? खैबर पर सर। मोराल कैसा है? A1 सर। मैं फर्रुख, बजाय इसके कि तुम यहाँ इनके सामने ये सर नौसर कहते रहो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम अंदर चले जाओ। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। कमोडोर साहब, आजकल हमारी बेगम के सर पर इरम की शादी सवार है। क्यों ना सवारो? देखिए, लाहौर से मेरी बड़ी बहन अपने बेटे को लेकर यहाँ आ रही है और शायद तारीख तय करने आई है। तो क्या आप लोगों ने इरम की मंगनी तय कर दी? नहीं, बाकायदा मंगनी तो नहीं की, लेकिन जब इरम पैदा हुई थी ना, उसी वक्त उन्होंने उसे अपने बेटे अख्तर के लिए मांग लिया। अच्छा 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 अच्छा, वो क्या कहते हैं, ठीकरे की मांग है? तो कमिश्नर साहब को भी अपनी बेगम से इत्तेफाक होगा। भाई हर शरीफ आदमी को बेगम की मर्जी के सामने राजी होना पड़ता है। वैसे मुझे बचपन की निस्बतों से हमेशा इख्तिलाफ रहा है। सुन रहे हैं आप भाभी? मेरे बहनोई यानी अख्तर के वालिद कैबिनेट में सेक्रेटरी हैं, बहुत बड़ा घराना है, अच्छा खानदान है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लड़का करता क्या है? MBA करके आया है, अपनी बिजनेस कर रहा है आजकल। देखिए, आप लोगों की सोच और मर्जी अपनी जगह पर, लेकिन असल सोच और मर्जी उसकी होगी जिसकी शर्म ताकीद की गई है, यानी जिसने जिंदगी गुजारनी है। जी हाँ, आप तो मुझे बाहर अकेला छोड़ाई थी, वो तो अंकल ने जबरदस्ती ये कहकर मुझे अंदर भेजा है कि बेटा यहाँ बैठे रहोगे तो यस सर और नो सर कहते रहोगे, इसलिए बेहतर है कि आप ही अंदर चले जाइए।
वैसे अनवर अंकल बहुत खूब है, मेरा भी इंटरव्यू ले रहे थे। अच्छा, और बार बार पूछे जा रहे आप आए तो मेरी जान बची और मैं एक्सक्यूज करके निकल आई। अब्बू और अनवर अंकल साथ बैठ जाए तो बस कह कहे बुलंद हो रहे होते हैं। पता है अब्बू ने क्या कहते हैं? क्या? स्माइली अनवर। मेरे ख्याल से उनकी मुस्तकिल मुस्कुराहट की वजह से। जी। वैसे एक बात है, अनवर अंकल का चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता है, और एक हम हैं मुस्कुराहट से नाशना। वाह भाई, आपकी उर्दू तो बहुत अच्छी हो रही है और शायरी भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो महज इत्तेफाक से जुमला आ गया। देखिए ना, आपकी सोबत में रह के थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, वरना वाकई महज हुस्न इत्तेफाक है। लगता है समंदर की रंगीनियों ने आप पे असर कर ही दिया। समंदर, सीप, मोती, आशना ना आशना, हुस्न इत्तेफाक। देखिए, अब आप मजीद खिंचाई मत कीजिए। मैंने कहा ना कि महज इत्तेफाक। और ये भी इत्तेफाक है कि कल यूनिवर्सिटी में जंग और अमन में समुद्री सरहदों की हिफाजत पर एक बहुत अच्छा सेमिनार हो रहा है और आपने चलना है। देखिए जनाब, हमारा तो काम और फर्ज हिफाजत है, वैसे जरूर चलेंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ये जो गुफ्तार के गाजी है ना, उनके ख्यालात भी मालूम होने चाहिए। गुफ्तार के गाजी? जी हाँ, ये जो दानिशवर हजरात है ना, ये गुफ्तार के गाजी तो हैं जो बड़ी बड़ी जंगें सिर्फ अल्फाज के जरिए लड़ लेते हैं। नहीं फरो, जंगें महज वाटर, एयर और लैंड फ्रंट्स पे नहीं, मुख्तलिफ फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं, जिनमें ऐसे सेमिनार भी शामिल हैं। आप उनकी अफादियत और अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। अरे बाबा, मैं इनकार कब कर रहा हूँ, और ना मेरा मकसद उनकी तहरीर और तकरीर की जौलानी से। मैं तो समझी आप मजाक कर रहे हैं। मेरी ये मजाल भाई, देखो मैं सीधा सादा टेलर आदमी, अपने ख्यालात को खूबसूरत अल्फाज का जामा नहीं पहना सकता, इसलिए बहुत सादगी से कह देता हूँ। वाह री सादगी, लेक्चर देते देते लगता है कि जैसे आप एक मुस्तनद लेक्चरार हो गए। वैसे गुफ्तार के गाजी का तस्करा करते हुए आपने अपना किरदार, यानी किरदार का गाजी होने को बहुत खूबसूरती से नुमाया। अरे बाबा, मैंने तो सिर्फ दायरे कार का तयन करने की कोशिश की, लेकिन ये साबित कर दिया आपने कि किरदार का गाजी गुफ्तार में भी किसी से कम नहीं। क्या कहते हैं, मनानम कि मनदानम। जी हाँ। जी। अरे मैंने आपसे चाय तो पूछी नहीं। बख्शू। अरे हाँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गया कमोडोर के, आपका अमेरिका का टूर कैसा रहा? वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे कभी फुर्सत मिली तो आकर तफसील बताऊंगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर तो आज मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं अब फ्लीट कमांडर हो गया। ओह गुड। अरे वाह, एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। अंकल। जी बेटा। अंकल जी, आप समंदर में जाते हैं ना? हाँ, जाता हूँ। वहाँ तो आप वर्दी पहन के जाते हैं ना? बेटा, वर्दी पहन कर जाता हूँ। वहाँ जंग भी होती है ना? हाँ बेटा, जंग होती है, लेकिन क्या बात क्या है? बाबा कहते हैं इसे पास रखने और पढ़ने से सब बनाए दूर हो जाती हैं। ये क्या चीज है बेटा? मंसूरा, इसे जब आप वर्दी पहने तो जेब में रखें अंकल। जरूर रखूंगा बेटा। हेलो। अरे अख्तर, तुम भाई कहाँ हो यार? तुम्हारी वजह से हमारी शतरंज की बिसात उल्टी पड़ेगी। भाई मैं अम्मी सुबह के फ्लाइट से आ रहे हैं। खाना के साथ आ रही? वेरी गुड यार, जल्दी आ जाओ, थोड़ी कंपनी रहेगी। कहाँ सब लोग? आप वो लोग सब लॉन में बैठे हैं, कहो तो बुलवा दो। नहीं, उन्हें मत बुलाओ। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहते हो। कहाँ है रम? होल्ड करो, वो अभी आ रही है। यू जस्ट इन्फॉर्म। मैं बताऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। अरे भाई, तुम आंखें उठे तो आ गए, कुछ चाय वाय भी पी कि नहीं? जी अंकल, मैंने चाय पी ली। वो अंकल अख्तर का फोन था लाहौर से, वो और उसकी अम्मी कल सुबह आए। अच्छा, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके अंकल, अब मुझे जाओ। जैसे खाना खा के जाना ना? आंटी, आज मेस में कुछ दोस्तों ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया और मुझे उनके साथ खाना खाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि कल सेमिनार से वापसी का आपके साथ खाना खा लेंगे। चलो ठीक ठीक हो गया।
अख्तर बेटे कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी मसरूफियत कैसी है? अंकल मसरूफियत के बारे में तो आप अम्मी से पूछिए, मैं तो आपको बिजनेस के बारे में बता सकता। अरे भाईजान, इसको तो खाने पीने की फुर्सत नहीं है, बिजनेस में इस कदर मसरूफ हो गया है कि इसको अपना भी होश नहीं रहा। अरे अब्बा अभी से? अरे आंटी, यही तो उम्र होती है पैसा कमाने की। बुढ़ापे में तो आदमी लाठी टेक के चलता है। तुम्हारा तो कोई टेक्सटाइल का कारोबार था ना? नहीं अंकल, टेक्सटाइल के अलावा रेडीमेड गारमेंट्स, फूड स्टॉक, और हम लोग मंडी से काफी फसलें वगैरह भी उठाते हैं। मतलब जो मजा एक्सपोर्ट में ना, वो किसी और चीज में नहीं। और इंपोर्ट भी, मगर जो एक्सपोर्ट में है वो इंपोर्ट में नहीं। 5 लाख का माल 50 लाख में शो करते हैं और उसमें हम डिबेट कमाते हैं। डू यू थिंक इट्स फेयर अख्तर? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पैसा कमाने के लिए बिजनेस में कुछ भी किया जा सकता है। आई डिसएग्री अख्तर। बिजनेस एक सही काम है जिसको अंजाम देने के लिए सही रास्ता इख्तियार करना जरूरी है। देखें क्या सही है और क्या गलत, ये एक डिबेटेबल मसला है। मुझे तो इतना मालूम है कि जो पैसे में इज्जत है वो किसी और चीज में नहीं। पैसा है तो सब कुछ। क्यों अंकल? हाँ ठीक कहते हो। लेकिन अब्बू, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है। हाँ तुम भी ठीक कहती हो। अरे वो भी ठीक कहता है, ये भी ठीक कहती, ये क्या बात है भला? आप भी ठीक है। चले करो, देर हो गई है, सेमिनार पे नहीं जाना। हाँ अख्तर, आप भी हमारे साथ चले। हम सॉरी फॉर, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, आप लिख कर रखें। अब चले हमारे साथ, चलिए उठिए। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो भाई चले चलते हैं। लेट्स गो। भाईजान कितने दिन हो गए हैं, कोई तो रस्म कर दे, कम से कम मुंह तो नीचा करवा दे। ख़वातीन हज़रात, समंदर की अहमियत और इफादियत का अंदाजा इस बात से होता है कि इस कुराए अर्ज़ का बेशतर हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है और माज़ी से इसकी अहमियत तस्लीम की जाती रही है। हमारी आजकल तिजारत का बेशतर हिस्सा तकरीबन 7% समुद्री शायरानों से होता है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी तिजारत को तहफ़्फ़ुज़ दें, साथ ही कुल वतन दुश्मन इस मगरम से निपटना है जो हमारे मुल्क की दौलत और उसके वसाइल को गैर मालिक के हाथ फरोख्त करते हैं। लिहाजा अगर हमारे पास एक ताकतवर बहरिया नहीं है जो एक सद सिकंदरी तामीर कर सके हमारी समुद्री सरहदों पे, तो ये नकबजन, ये चोर, ये घर के भेदी, ये मुनाफाखोर, ये चोर बाजारी करने वाले, ये वतन फरोश हमारे अवाम के हुकूक पर डाका डालेंगे और हमारे मुल्क के वसाइल को स्मगलिंग की नजर कर देंगे। क्योंकि बहरिया की जरूरत यूं ही है, हम जारहियत नहीं चाहते, लेकिन हमारे हमसाए में जो उसकी जो नफ्सियात हैं और उसकी जो माजी की रवायत है वो कुछ ऐसी रही है कि उसने जमीन हो या समंदर, उसने जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूल पे अमल किया है और बैनुल-अक़वामी कवानीन और अखलाक की धज्जियां उड़ाई हैं। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर एक न खत्म होने वाली जारहियत की कहानी है। चलिए जमीन पे तो हमारे जवान लड़ लेते हैं, समुद्र में भी हमें अपने दफा के लिए अपनी बहरिया को मुस्तहकम करना है और नाकाबिल तस्खीर बनाना है। लिहाजा जमाने जंग हो या अमन हो, बहरिया का एक अपना किरदार बड़ा अहमियत रखता है। शेर और मात, वर्ड ऑफ दिस यार अक्सर ही शतरंज ऐसा खेल है जिसमें बाज़ दफा जिस चाल से शायद हो उसी चाल से खुद को मात हो जाती है। अगर खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ तुम कल
सेमिनार से बगैर कुछ बताए उसको क्यों भाग गए? यार भागने का रास्ता भी था और मौका भी। वैसे भी सेमिनार में मेरे मकसद की तो कोई बात ही नहीं थी। ये क्यों नहीं कहते भाई कि तुम्हारे और उनके ख्यालात आपस में क्लैश कर रहे थे? हाँ, कह सकते हो। भाई कौन जीता कौन हारा? एक सवाल में आपको दोनों जवाब मिल जाएंगे। यानी कौन जीता? जीत तो हमेशा गन की होती है। नहीं साहब, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। जीत हमेशा जज्बे और स्पिरिट की होती है। फिलॉसफी का मूड नहीं। ठीक, वेरी सिंपल। बात होगी। ऐसे भी क्या खेल कि आपको फोन की बेल नहीं सुनाई दे रही? सॉरी। हेलो। यस सर। इसी वक्त ठीक आया सर। क्या बात है, खैरियत? जहाँ खैरियत तो है, लेकिन आई हैव टू रिपोर्ट बैक। क्या है ये? अब भी फोन आया और अभी चल दिए। ये कोई टाइम है तुम्हारे जाने का? सिर्फ सुबह चले जाना करो, अभी खेलो बैठ के। सारा मूड खराब करो तुम। हमारी ट्रेनिंग में सबसे बड़ा सबक यही सिखाया जाता है, यू हैव नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट डू एंड डन। हुक्म मिल गया तो निकल पड़ो। बख्शो जरा बात सुनो। जी सर। देखो मेरी गाड़ी आ रही है, कमरे में मेरा बैग पड़ा है, गाड़ी में बैग रखो, मैं भी आता हूं अंदर से, ठीक है? भेजे। हेलो हेलो। हाँ हाँ मुख्तार, तुम्हें अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया। मैं तुम्हें अभी फोन करने का सोच ही रहा था। मेरा इतनी होल्ड तो करोगे। बात सुनो। अरे भाई यहाँ पे मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जंग के आसार पैदा हो रहे हैं। तो तुम सारी सफाई बंद कर दो। हाँ हाँ वही ना, सारा माल स्टॉक कर दो। हाँ भाई तो डबल प्रॉफिट है ना। हाँ भाई बिजनेसमैन की यही तो ब्लेसिंग है ना। हाँ हाँ ठीक है। चलो कोई खास बात होगी मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। ठीक ठीक है। खुदा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बेटा तुम्हारा बुलावा जल्दी नहीं आ गया? अंकल वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ओह जस्ट लाइक मी। इमरजेंसी इमरजेंसी। अबे वो अख्तर कहाँ है? हाँ बेटा बुलाओ उसे, ये ऑफिस करेगा पर उसे। अच्छा मैं बुलाओ। आए हम नीचे चलते। आइए नीचे आइए। हाँ तो मैं ही कह रहा था। अख्तर आप यहाँ हैं? अम्मी अबू तो बाहर फारूक को सी ऑफ कर रहे हैं, आप नहीं मिलेंगे? अरे भाई उनका क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। हम तो आपसे लाहौर से मिलना है, सिर्फ आपसे। बैठे कभी हमसे भी अकेले में बात कर लिया करें। ओके अंकल आंटी, अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे हाँ, वो इरम बेटी अख्तर को बुलाने गई थी। बेटी कहाँ है अख्तर? वो अख्तर नहीं है अंदर। ओके खुदा ओके खुदा। खुदा।
ये विविध भारती है। अब विशेष समाचार। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, यदि पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ के मैदान से अपनी सेनाएं पीछे नहीं हटाईं तो भारत पाकिस्तानी सीमाओं पर अपनी इच्छा से आक्रमण शुरू कर देगा। और छोटे, और ना कोई ट्रक आ रहा है आज, ना कोई बस, और मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। और वैसे भी मैं आज बहुत थक गया और मैं कुछ अब आराम करूंगा। साहब, जब तक कोई ट्रक नहीं आता ना, तुम थोड़ा आराम कर लो और मैं ताजी ताजी खबरें सुन लूं। बेवकूफा, और सुबह सवेर 5 बजे तुझे कौन ताजियां खबरें सुनाएगा? ओ देव, अल्लाह ने आज को दिया। चालू खुशाबाद, बिस्मिल्लाह, वो आया जी। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाह जी आया नहीं। अस्सलामुअलैकुम, खैर है जी। वाह वाह, चल छोटे शाबाद, 2 नंबर हो। थोड़ा अखबार तो देना। और छोटे की सवेरे सवेरे अखबार की रड लाई यार, वैसे भी अखबार शाम का है, सवेर का नहीं। एले फड़। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वजीर खारजा की दिल्ली में मुलाकात। ओ बाबू, ओ चंगी चंगी खबर सुना सानू, जिसने गरम गरम चाह पियाना है। और छोटे, और चलो ये अखबार मुझको दे और मैं सुनाता हूँ इनको खबरें। चल तू मेरा बच्चा, गरम गरम चाह बना, शाबाश, फटाफट हो। तुम्हारा भाई को खास खबर हमने भी सुना यार। और ये खबर तो सानू पता ही नहीं थी। सारे मजे खुद ही लेते रहोगे, हमने भी सुनाओगे कोई खबर? और पलवान जी, मजे तो बांट के लो। और चाचा सबर कर ले, फिर आज की ताजा खबर सुन। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ये याद रखेगा। लाल बहादुर शास्त्री की धमकी। दसो जी, लाल भी है तो बहादुर भी है। और छाट पड़े, सबक सिखाएगा। उठो तो गिठ, बैठो तो मुठ। रंद काट से भाग गया था ये प्रसाद, तुम दूसरी बारी फिर पंगे लाके देख लवे। ओ उस्ताद, मैनू लगता है जंग शुरू होने वाली है, क्यों ना असी अपने अपने तौर पर राशन इकट्ठा कर लीजिए। और राशन वाशन की सानू कोई लोड़ नहीं बोलो, एक बारी सानू छेड़ के तो वेखिए, कस ने रब दिया करोना तो राशन ना बंद कर दिए ते साडा ना नहीं। और सदा दे ना उस्ताद, इसी बात पे आप चाय पियो गर्मा गर्म। ओ जिए एक दूध पत्ती सन भी ला, अभी ले उस्ताद। की हो गया? ये रेडियो पाकिस्तान है। आज सुबह भारत ने लाहौर और उसके गिरदोनिवाह के इलाकों में बुजदिली का सबूत देते हुए अचानक हमला कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज की जवाबी कार्रवाई के बाद दुश्मन भाग खड़े हुए। back on bridge.
What's the state of the channel? Is channel clear of mine? Sir, Harbour Master has confirmed that no ships are entering or leaving harbour. Commandant 21 has reported channel is clear of mines and channel state is green, sir. हार्बर में कोई इंडियन मर्चेंट शिप्स और नहीं है? Yes, sir. There are 2 Indian merchant ships, SS Jatendra and SS Saraswati, in harbour, being detained by naval control of shipping staff at berth number 10 and berth number 16, sir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Other ship slip कीजिए. Bismillahirrahmanirrahim. Chief Yeoman, slip the first ship. Let go all ropes. Let's move on. Sector 2. Sector number 3. Vice carry on. सर एमआरओ ने बताया कि सदर पाकिस्तान फोन से 10 बजे खिताब फरमाएंगे। एक्सक्यूज सर, सदर पाकिस्तान कौन से खिताब फरमा रहे? बस ये जहाज जरा क्लियर हो जाए फिर चलती है। तुम स्पीच का अनाउंसमेंट करा दो और हमारे से कहो कि इसको जनरल ब्रॉडकास्ट पर रिले कर दें। ख़वातीन हज़रात, सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान वतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं।
اور مسلمانوں کی علیحدہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ پچھلے 18 برس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالی نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے ہموطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ سگنل سر۔ کیپٹن جی، یس سر۔ میرے خیال میں یہ میسج شپس کمپنی کو کلیئر لوور ڈیک کر کے سنا دیا جائے۔ آیا سر 100 کلیئر لوور ڈیک کروا کے یہ میسج شپس کمپنی کو پڑھ دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Gentlemen, order of the day from CMP Navy. India has aggressed and is waging all-out war against Pakistan. Our brave comrades in the Pakistan Army and Pakistan Air Force have already given the enemy a stunning onset and inflicted heavy blows. The nation is solidly behind Supreme Commander and the armed forces. I call upon all officers and men of Pakistan Navy to discharge the sacred duty with faith, courage and determination and justify the trust reposed in us. God-willing success will be ours. Pakistan Zindabad. Nara Takbir! Nara Takbir! Nara Takbir! Contact on bridge. Oh, sir. Sir. Please proceed to assign sectors. Aye, sir. Diplomat? Just proceed to assign sectors. Conflict is letter 2, bridge. Tango, confirm. 1 minute, tag 2, tag 1. Break time 1032. Charlie 6, 5 Tango, over. باقی آج تو آپ نے بہت کام کیا، یعنی باہر کی تمام کھڑکیوں پہ کالا کاغذ لگا دیا۔ گڈ۔ ارے شاید رنگ بھی آ گیا۔ میں تو جناب شامی سے بخشو کے ساتھ مل کے یہ سارا کام کر رہی ہوں۔ اچھا، ویری گڈ۔ بخشو یہ بھی لے لو اور پیچھے کا جو ایک روشن دان رہی ہے نا اس پہ لگا دو تین کھڑکیاں رہ گئی۔ شاباش شاباش، دیکھیے۔ گڈ۔ باقی ایسے ہنگامی حالات میں لوگوں کو اتنا ہی کوشش ہونا چاہیے۔ وعلیکم بیٹے، کیا حال ہے؟ جی بالکل جی۔ ابو آج میں نے گاڑی کی لائٹیں نہیں جلائی۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اندھیرے میں گاڑی چلا کے لائی ہو؟ جی بیٹا، تمہیں رک جانا چاہیے تھا، اٹس ویری ڈینجرس۔ نہیں ابو، آج کل کے حالات میں خطرے کا کون سوچتا ہے؟ اور پھر وہ لوگ بھی تو ہے نا جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر آسمانوں میں، سرحدوں پہ اور
समंदरों में जंग लड़ रहे हैं, हम उनसे अच्छे तो नहीं हैं। गुड, वेरी गुड, इट शुड बी दैट, वेरी गुड। हेलो जी जी आ रहे हैं। हेलो, यस स्पीकिंग। नो पैनिक, नो पैनिक। तुम अच्छा करो कि सिविल डिफेंस से रब्ता रखो और हवाई हमले से बचाव की तरकीबें रेडियो से बार बार नष्ट कराओ, ठीक है? और पब्लिसिटी की अप्रूवल मैं दूंगा। गुड। बेटा आपका सिविल डिफेंस का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा। इतनी सारी लड़कियां आई हुई थी, उनकी मदर्स भी आई हुई थी, मैंने कहा था कि आप भी आ जाए। बेटे मैं तुम्हारी खाला को सी ऑफ करने गई थी ना, खासतौर पर जाते हुए ताकीद करके गई है कि दिसंबर में शादी हो जानी चाहिए। नहीं आप कैसी बातें करती हैं? आप हालात तो देखें। हालात की वजह से दुनिया के काम नहीं रोका करते बेटा। अच्छा मैं फाइनल एग्जाम हो जाए फिर देखा इसे पता नहीं क्या हो गया। सर, आज अलग सुबह तकरीबन 4 बजे कराची पर जो हवाई हमले हुए हैं, TF बेस बदीन की इत्तला के मुताबिक इन हवाई जहाजों में से कोई भी खुश्की के रास्ते से नहीं आया, बल्कि समंदर की तरफ से आए हैं। जब हमारे फाइटर एयरबोर्न हुए तो दुश्मन के हवाई जहाज भाग निकले और भागते भागते शहरी इलाके पर बम फेंक गए। लिहाजा ये बात तय हो गई कि कराची पर हमला जमीन से नहीं बल्कि समंदर की तरफ से हुआ। गालिबन इस हवाई हमले में शामिल हवाई जहाज जामनगर के हवाई अड्डे से आए। इनको गाइडेंस द्वारका में मौजूद मोबाइल रेडार स्टेशन से मिलती है, जिसका मतलब है समंदर से साहिली इलाकों पर मजीद हवाई हमले मुतवक्को हैं। सर, ये है द्वारका, कराची से 210 मील दूर कच्छ के उभार के सिरे पर वाक़ है। फौजी नुक्ता निगाह से इसकी बड़ी अहमियत है। दुश्मन के ताकतवर रेडार यहां पर नस्ब हैं, जहां से जामनगर और बंबई की पट्टी में से गुजरने वाले बहरी और हवाई जहाजों पर नजर रखी जाती है। यहां पर लगे हुए रेडार और रेडियो बीकन ने पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर फिजाई हमलों में ताउन किया। द्वारका पाकिस्तान के साहिली इलाकों, खुसूसन कराची के लिए शरअंगेज कार्रवाइयों का मरकज है। अगर ये इंस्टॉलेशन मौजूद है तो इस सिम से हवाई हमलों का खतरा मौजूद रहेगा। What are the installations at this place? सर, मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से द्वारका शहर और खास तौर पर द्वारका रेडार स्टेशन की पोजीशन का लेआउट तैयार किया है। हमारा टारगेट द्वारका रेडार द्वारका रेलवे स्टेशन के शुमाल मशरक में वाक़ है। रेडार के मशरक में सोमनाथ का मंदिर है और रेडार के मगरबी हिस्से में रूपन बंदर नाम का एक छोटा फिश हार्बर है। रेडार पोजीशन तकरीबन साहिल से 1 मील अंदर वाक़ है और इसकी हिफाजत के लिए इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का जाल बिछा हुआ है। रेडार के मगरब में एक रेलवे लाइन भी है जो द्वारका को जामनगर और पूर्व बंदर से मिलाती है।
مزید مغرب میں ایک میٹل ٹریک ہے جو دوارکا کو اوکھا پورٹ سے ملاتا ہے، جو کہ دوارکا سے 26 میل نارتھ میں ہے۔ اور آخر میں ایک اہم چیز، ریڈار اسٹیشن کے جنوب میں ایک آرٹلری یونٹ ہے جو سمندر کی طرف فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سر، اس کے علاوہ ایک پاکستانی مال بردار جہاز باغ کراچی مصر کی بندرگاہ پورٹ سعید پر ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ بل آف لیڈنگ کے مطابق اس جہاز پر پاک فضائیہ کے لیے حساس میزائل اور پاک آرمی کے لیے حساس اسلحہ موجود ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر بھارت کے لیے بھی سامان لدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مصری حکومت نے اس کو ڈیٹین کیا ہے، اور خدشہ ہے کہ دوران سفر انڈین نیوی اس جہاز کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سر، پھر تو ہمیں اسے اسکاٹ کرنا پڑے گا۔ سر، نیول بمبارڈمنٹ کے لیے یہ ایک آئیڈیل ٹارگٹ ہے۔ ہاں، ان حالات میں یہ ضروری ہو گیا۔ میرے خیال میں دوارکا کے اوپر ہمارے بحری بیڑے کا حملہ بہت کارگر ثابت ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ دشمن مجبور ہو جائے گا کہ اپنی توجہ ہمارے بحری راستوں سے ہٹا لے، اس کو اپنے بحری بیڑے کو اپنی بندرگاہوں میں پناہ دینی پڑے گی، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کو مجبوراً ہمارے بحری بیڑے سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیٹس گیٹ آن ود اٹ، ڈش آؤٹ دا سگنل۔ Now we will teach them a lesson. ہمیں دوارکا پہ بمبارڈمنٹ کا آرڈر ملا ہے، تو یہ پلاٹ کر کے دکھائیے۔ آیا سر؟ The present position of ships at 1500 is this one. At 1800 RV for the ships is this place. For firing IP midnight 7 September near Dwarka is this place. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے باب المندب کتنا دور ہے؟ سر، یہاں سے پورٹ آف عدن 1390 نیٹیکل مائل ہے، جبکہ باب المندب 1485 نیٹیکل مائل ہے سر۔ رائٹ، آپ ایسا کریں کہ ٹینکر ڈھاکہ کو فیولنگ کے بعد یہاں کہیں آ بھی دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں اسکورٹ آپریشن کے لیے یہاں سے جہاز روانہ کرنا پڑے۔ آیا ایسا؟ یس۔ گڈ، بمبارڈمنٹ آرڈر تیار کیا جائے، لیکن یاد رہے اس حملے میں ہمارا ٹارگٹ دوارکا کا وہ ریڈار ہے جو کراچی پر ہوائی حملے میں مدد کر رہا ہے۔ آیا ایسا؟ ہاں، تمام شپ سے کہہ دیا جائے کہ وہ فیولنگ کے لیے تیار۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بمبارڈمنٹ آرڈر ہیلنگ لائن کے ذریعے تمام شپ سے پہنچا دیا جائے۔ اینڈ وی نیم دس آپریشن ایز آپریشن سومناتھ۔ آپریشن سومناتھ سر؟ کوئی شک نہیں سر؟ میرا مطلب ہے وہی سومناتھ ود چکن، وہی سومناتھ جسے محمود غزنوی نے فتح کر کے تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ بے شک سر، اسی نے صحیح کہا ہے سر کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ذرا سوچو کیپٹن، ایک شخص غزنی سے گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر چلا، قلب ہند سے ہوتا ہوا گجرات اور کاٹھیاواڑ پر جا پہنچا۔ ہمارا سفر بھی اسی طرح
सर, महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे और हम 18वां हमला करेंगे। और सिर्फ इतना है कि वो गोरों के पीठ पर सवारों की खुशकी से हमलावर हुआ था और हम समंदर से हमलावर हो गए। और सर, हकीकत यही है कि इस वक्त हमारा बेड़ा भी बिखरे हुए समुद्री सी हॉर्सेस पर सवार होकर उसी तरफ जा रहा है। वेल सेड, वेरी वेल सेड। Salient features of this operation are: the initial position selected is 206 Dwarka Lighthouse, 6 nautical miles. Mission is to carry out bombardment of Dwarka radar and coastal installations. Target position is 22°14 north, 68°58 east. This is north of a position shown as Temple on the chart, sir. Ammunition is 50 rounds per ship. इस एंगल से जा रहे हैं। ये डायरेक्शन है बंबई की तरफ, द्वारका इस तरफ रह जाता है। बगैर हम बंबई की तरफ जा रहे हैं ताकि दुश्मन अगर हमें डिटेक्ट कर भी ली तो उसे ये पता ना चले कि हम किस तरफ जा रहे हैं। राइट? राइट। इंडियन इंटेलिजेंस की कंफर्म्ड रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सबमरीन गाजी बॉम्बे के आसपास साइल पे मौजूद है, लेकिन लोकेट नहीं हो रही। और सर जी यही तो परेशानी है कि लोकेट नहीं हो रही।
جو لوکیٹ ہو جائے تو چٹکا نہ کر گئی ہے. اس لیے آرڈر یہی ہے کہ حفاظت کے کارن ایئر کرافٹ کیریئر وکرم تو دوسرے بڑے جہازوں جن میں دہلی بھی شامل ہے پیچھے ہٹا کر بامبے ہاربر کی حدود میں رکھا جائے. ہاں چھپ جائے جناب چھپ. تو قاضی بمبئی کے لیے روانہ ہو چکی ہے, وہیں سے آگے ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری ایک سب مرین قاضی جس وقت بمبئی کے باہر ان کی ٹیریٹری میں دشمن کتنے ویل اکوپڈ بڑے بڑے بھاری برتن جہازوں کی طاق میں ان کی مختصر بیٹھی ہوگی. واحگुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह. है सर जी एक गल पूछनी आ. बोलो बलवंत सिंह. सर जी ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਬਮਰੀਨ ਗਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤਾਈ ਹੋਰ ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਅਸਾਂ ਖੇਲਾਂਗੇ? भाई जब तक मुझे हाई कमांड से ऑर्डर्स नहीं आते बलवंत सिंह मैं कुछ नहीं कर सकता. और सर जी और निक्के होंदे ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ. ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਮਕਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗਾਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੁਪ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਕਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਕਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ. ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੁਪਹਿਰੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ. और गुरु जी का वास्ता दे उन्होंने लुकेट कर लो. और ऊपर वाला तो गुरु अच्छी तरह जानता है कि मुस्लिम ने जरूर कोई बड़ी सुपीरियर प्लानिंग की हुई है. सानू बंबे तो द्वारका च मसरूफ रखकर एक उच्चा ऑपरेशन किसी होर पासे करनगे. और साढ़े प्लेयर ने समझ ही कुछ नहीं आ रहे. और बागरू इन्होंने समझा. नेवी के नौजवान से मोहब्बत, वतन की मोहब्बत के अलावा उसके पास है क्या? जिसके पास वतन की मोहब्बत हो उसे और कुछ नहीं चाहिए. देखो इरम, ये सब बातें गांवों की हद तक तो अच्छी लगती हैं और तुम्हें मालूम है जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए. तुम कितनी खुश नसीब हो जिसे मैं चाहता हूं. तुम शायद इस फर्क को नहीं जानते हो जो तुम में और फारूक में है. हाँ मैं जानता हूं. वो तुम्हें सरकारी जहाज की सैरी तो करा सकता है. मैं तो तुम्हें जहाज खरीद के दे सकता हूं, बोट खरीद के दे सकता हूं. कितना फर्क है. तुम तो जानती हो मेरे पास कितना रुपया है. जहाज डूबते तो शायद थोड़ी देर लगे मगर पैसा डूबते चंद सेकंड लगते हैं. तुम अपने पैसे से खुश रहो, मुझे मोहब्बत से खुश रहने दो. पाकिस्तान कराची है. एक जरूरी ऐलान समाज फरमाइए. कमिश्नर कराची ने आवाम से अपील की है कि दुश्मन के एजेंटों और समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी निगाह रखें और अगर किसी शख्स को मुश्तबा हालत में घूमते हुए देखें तो फौरन पुलिस को इत्तला दें. ऐलान खत्म हुआ. बेटा तुम्हारी खाला कितने फोन आ चुके हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देती? बेटा तुमने जो कुछ भी फैसला किया है हमें बता दो. उन्हें कुछ न कुछ जवाब तो देना ही है. अच्छा ठीक है, आपको मेरा जवाब कल सुबह मेरे कमरे से मिल जाएगा. तुम्हें बात बताओ, जब तुम समंदर का रुख करते हो ना तो मेरा हर दिन किसी न किसी तूफान में घिरा गुजरता है. मौजों की तरह मेरी तबीयत भी परेशान रहती है. खुदा करे खुश और हंसते मुस्कुराते वापस आओ.
ताकतवर है। तुम्हारी दोस्त तुम्हारे दुश्मन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें वापस आना होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे और तुम्हारे बहन बेमानी साबित हो। फिक्रमंद हरगिज नहीं होना। अगर हमारी सरजमीन है तो हम हैं। हमारा वजूद हमारी मिट्टी से वाबस्ता है। आइए। तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब वक्त है कि हम अपने अफसरों और जवानों को अपने टास्क फोर्स के एम्स और ऑब्जेक्ट्स बता दें कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है। ध्यान सुनिए, अब ऐसा कीजिए कि जहाज में कमांडिंग ऑफिसर से कहिए कि वो अपनी अपनी शिप्स कंपनी को एड्रेस पर ये बता दें और हाँ वो ढाका डिसाइड कर दीजिएगा। जी सर। खुदा ताला ने हमें अपने मुल्क से बचाकर एक बेहतरीन मौका फराहम किया। नेवी ने तैया किया है कि दुश्मन को उसके घर के अंदर जाकर मारा जाएगा। आज हमने एक बार फिर महमूद गजनवी की याद को ताजा करना है। मिशन यह है कि आज रात द्वारका पे कंपार्टमेंट करके हम उसका राजा स्टेशन और ये डेकन तबाह कर। माइक गल्फ, दिस इज माइक अल्फा। सर ये माइक गल्फ रेपिटेशन मांग रहा है और मैंने उससे कहा कि डू नॉट आस्क फॉर रेपिटेशन, आई शैल कॉट यू बाय लाइफ। सर एक सिग्नल इंटरसेप्ट हो रहा है। सिग्नल क्या है? डू नॉट आस्क फॉर रेपिटेशन, आई शैल पास यू बाय लाइफ। इसको फेस करे फेस और इसको डिसाइड करे क्या है और कहाँ है जल्दी। सर आगे कुछ नहीं मिल रहा, बस यही एक सिग्नल मिला है। मेरा कंप्लीट रेडियो साइलेंस है। नो ट्राई करो, आप ट्राई करो, ट्राई अगेन और मुझे इन्फॉर्म करो कि शिप कहाँ से। क्विक Nothing visual, sir. Sir, continuously painting on bearing 124. Okay. आलमगीर से कहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट को investigate। आया सर।
यू गॉट समथिंग? सर कुछ कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं. फॉलो करें. Deployment of ships in a column heading towards our course, sir. Distance 25.1 nautical miles, sir. Very good. ये ग्रीन फ्लेयर है. एयरक्राफ्ट में सकता है. Request permission to open fire, sir. This is our rule, sir. ये ग्रीन लाइट के ऊपर सफेद रोशनी दिखा रहा है. ग्रीन लाइट के ऊपर सफेद रोशनी दिखा रहा है. Roger. I think it's a merchant ship. All stations revert to normal. All stations revert to normal. Hands to defense station. Hands to defense station. Port watch close up. Resume and be straight to condition Yankee. Out. So request permission to alter to the model course. Approved. I accept. We are giving solid to the other coast. There are radar stations located. Try to take action. Contact naval headquarters immediately and ask for instruction. Tell the army shore batteries to open fire on them. Quick. जानते हो हमने इस ऑपरेशन के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया. इस वक्त हमारी पूरी नेवी दुश्मन की टेरिटरी में है सर. और ये भी एक रिकॉर्ड है कि इतने तवील सफर में दुश्मन ने अब तक हमें डिटेक्ट नहीं किया है. मंसूरा, इसे जब आप वर्दी पहने तो जेब में रखें अंकल. थोड़ी देर में हम इनिशियल पोजीशन में होंगे जहां से बम्बार्डमेंट करके हम दुश्मन के बहुत बड़े इंस्टॉलेशन का खात्मा करना है. सर, लेकिन ये कोई आसान टारगेट नहीं है. एक
बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। हो सकता है कि द्वारका के शुमाल में दुश्मन का कोई वारशिप छुपा बैठा हो। यह भी हो सकता है कि द्वारका वालों ने हमें टक्का के पीछे खड़ा कर दिया हो, जहां से हम पर किसी वक्त भी एयर अटैक हो सकता है। सर, ये मुमकिन है, लेकिन गाजी सर से कफन बांध कर निकलते हैं। हम इज्जत के साथ जीने और इज्जत के साथ मरने के लिए तैयार हैं। यकीनन सर, अफसरों और जवानों में कुछ ऐसा ही जोश और वलवला है। Not yet. Sir, our 4-5 guns are ready on target. Request permission to open fire. No, not at all. यमराज को मत बुलाओ, खुद मौत को दावत मत दो। वैसे भी हम उनका टारगेट नहीं हैं। Radio silence. Michael is Michael. Stand by to stop the clock. Stand by for bombardment. Stand by for bombardment. Stand by for bombardment. Four parties ready for bombardment. 50 rounds provided on each mounting truck. Well done. Alamgir is ready for bombardment, sir. Okay. Sir, all the units have reported readiness for bombardment. Okay. Good. Very good. हमारे भी की पोजीशन पर पहुंच गए हैं। Sir, another 2 minutes to go. ये इमीडिएट मैसेज है। एमवी बावे कराची पोर्ट सईद से कराची के लिए सेल कर चुका है। नेवल हेडक्वार्टर ने हमें इसको एस्कॉर्ट करने का हुक्म दिया है। ओके, आप ऐसा करें कि खैबर, शाहजहां और बाबर को बम्बार्डमेंट के फौरन बाद अदम की जानिब हाई स्पीड ट्रांजिट का हुक्म दीजिए। इसका सिग्नल बना लीजिए। आए सर। Right. Come
commence bombardment. Commence bombardment. Alpha 6 is Delta 1 bridge. Echo Delta 1 tech 11 does bombardment. Time 0030. Over. Open fire! Open fire! Fire! समंदर वाले
अपना रह कर है